Dear student, I hope you like the first part of this video. So let's get start the next question. Question number 9. In the given figure, PQ is tangent to circle centered at O. PQ एक टेंजेंट है सर्कल का जिसका सेंटर O है. एंगल AOB is equal to 95 degree. AOB is equal to 95 degree. Then the measure of angle ABQ. ABQ ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा ये पूछ रहा है. तो हमने पढ़ा है सर्कल्स में थ्योरम 10.1. द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. बी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का जो रेडियस को कांटेक्ट कर रहा है. इसका मतलब एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री. नेक्स्ट इन ट्रायंगल ओ ए बी, OA and OB are radius of circle. And we know that all the radius of circles are equal. Therefore, it becomes the isosceles triangle. So, angle OAB is equal to angle OBA. We have also a theorem which states that angles opposite to equal sides are equal. Therefore, first angle is 95 degree. And 2 times angle OAB because OAB equal to OBA. Therefore, 2 times angle OBA is equal to 180 degree. Therefore, angle OBA is equal to 42.5 degree. So, हमें मिल गया ये एंगल 42.5 डिग्री. हमें पता करना है ये एंगल. अब पता है कि पूरा एंगल 90 डिग्री है. 90 डिग्री में से अगर ये एंगल हम हटा देंगे तो हमें एंगल ए बी क्यू आ जाएगा. सो एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ओ बी ए विच इज ऑलरेडी फाउंड 42.5 डिग्री. देयरफॉर एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42.5 डिग्री इज इक्वल टू 47.5 डिग्री. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ए बी सी हैविंग ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर टचिंग द साइड डी ई एफ रिस्पेक्टिवली. देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल टू. तो थ्योरम है 10.2. The length of tangent drawn from an external points are equal. So A is an external point from where two tangents are drawn, that is AD and AF. So length of AD and AF will be equal. Similarly, length of BD and BE will be equal and length of CE and CF will be equal. Now we have given that AB plus BC plus CA is equal to 50 centimeter. So we can write AB in two parts, that is AD plus DB. Similarly, BC can be written as BE plus EC and CA can be written as CF plus AF. By solving, we get 2 times AD plus BE plus CF is equal to 50 degree. Therefore, AD plus BE plus CF is equal to 50 by 2, that is 25. So our option B is correct. Next question number 11. 1 plus cot square alpha by 1 plus cosec alpha is equal to. So we know that cot square alpha is equal to cosec square alpha minus 1. तो हम कॉट स्क्वायर अल्फ़ा के जगह पे लिख सकते हैं कॉटेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1. तो ये हमारे फॉर्मूला पे बैठता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकॉज 1 इज ऑल्सो स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ. देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो 1 प्लस cosec alpha minus 1 cosec alpha plus 1 divided by cosec alpha plus 1. Cosec alpha plus 1 and cosec alpha plus 1 will be cancelled out.
therefore remaining 1 plus cosec alpha -1 plus what cancelled, therefore answer will be cosec alpha, that is option number C. This question is also from trigonometry. Question number 12, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो हमें पता है cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। सो हमें बेस पता है 4, हाइपोटेनियस 5। सो हमें निकालना है परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर की ज़रूरत है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सो P इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16 इज इक्वल टू रूट 9 इज इक्वल टू 3। सो साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular by hypotenuse, that is 3/5. Now tan theta is equal to sin theta by cos theta, that is 3/5 divided by 4/5, that is 3/4. One more method, tan theta is equal to perpendicular by base, that is 3/4. So option number A is correct. Question number 13 है, a ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed against a wall. Then AB is a wall and a ladder which is placed on it is AC. If the foot of the ladder is 2 meter away, that is BC is 2 meter from the wall, then the length of the ladder in meter. तो हमें लेंथ ऑफ लेडर चाहिए AC। तो ये परपेंडिकुलर है और इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो यहाँ हमें बेस पता है और एंगल पता है, तो हम इसके लिए कॉस के तरफ जाएंगे। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय AC, बेस बाय हाइपोटेनियस। हमें पता है कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 2, BC इज इक्वल टू 2 बाय x. By solving, x is equal to 4 meter, so option number C is correct. Question number 14, in a circle of radius 14 centimeter, an arc subtend an angle of 120 degree at the center. If root 3 is equal to 1.73, then the area of the segment of the circle is. तो आर्क हुआ AB, arc is a part of its circumference, so this curved path is known as arc, and this shaded part is segment of the circle. ये पूरा जो पार्ट है ये सेक्टर कहलाता है, सेक्टर AOB ये सेक्टर, और ये जो कॉर्ड के अंदर रहता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो रेडियस है 14 सेंटीमीटर, एंगल बना रहा है 120 डिग्री का। ये आर्क सेंटर पे, AB आर्क सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द रेडियस, दैट इज ट्रायंगल OAB। अगर इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr² माइनस इस ट्रायंगल का एरिया r² इंटू साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो साइन θ/2 मतलब 120 डिग्री बाई 2, दैट इज साइन 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। तो थीटा है 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू r माइनस r इंटू साइन 60 इंटू कॉस 60।
तो बाय सॉल्विंग वी गेट 205.33 माइनस 49 इंटू 1.73 दैट इज 120.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, ए पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो पेंडुलम है जो ओ से लटका हुआ है, इसका टोटल स्विंग आर है, आर रेडियस के ऊपर ये घूमता है और एक पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है, जो कि अर्क बनाता है 8.8 सेंटीमीटर का और एंगल 30 डिग्री। तो अर्क लेंथ हमारे पास आया 8.8। अब ये अर्क जो है वो पूरे सरकमफेरेंस का पार्ट है। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, लेकिन वो 360 डिग्री के लिए, यहाँ हमारे पास सिर्फ 30 डिग्री तक ही है। तो अर्क का लेंथ होगा θ/360 इंटू 2πr, जो हमारे पास दिया हुआ है 8.8। बाय सॉल्विंग वी गेट r इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 4/5 दैट इज 16.8 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। You can also calculate the entire value. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से है। नंबर ए डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। डाई को जब हम फेंकते हैं तो सिर्फ 6 पॉसिबल आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। जब एक ही बार फेंका है तो यही 6 उसके पॉसिबल आउटकम होंगे। अब हमें चाहिए सिर्फ इवन नंबर्स, तो 3 इवन नंबर पॉसिबल हैं, 2 4 एंड 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, दैट इज 3/6 इज इक्वल टू 1/2। सेम क्वेश्चन 17, 3 rotten eggs are mixed with 12 goods one, मतलब 3 सड़े हुए अंडे मिक्स हो गए 12 अच्छे अंडों में से, तो टोटल अंडे हो गए 15। 1 egg is chosen at random, the probability of choosing a rotten egg, उसमें से एक निकाला गया अंडा जो कि सड़ा हुआ था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो टोटल अंडे हो गए 15, जिसमें से 3 जो है हमारे फेवरेबल आउटकम है कि अगर 3 उसमें से सड़े हुए अंडे निकल सकते हैं मैक्सिमम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए रोटेन एग विल बी 3/15 इज इक्वल टू 1/5, ऑप्शन नंबर सी। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट इन ए सेट। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेस देन 10, लेस देन 20 मीन्स ये क्लास इंटरवल नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मतलब जिसको 10 से नीचे आया वो भी लेस देन 20 में काउंट होंगे, जिनको 20 से नीचे आया वो भी लेस देन 30 में काउंट होंगे। तो ये एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हमें इसको फ्रीक्वेंसी में बदलना होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा मॉडल क्लास होगा। सो आफ्टर रीअरेंजिंग we get class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Cumulative frequency 3, 12, 27, 57, 75, 80. Now frequency will be 3. Next 12 minus 3 is equal to 9. Next 27 minus 12 is equal to 15. Next 57 minus 27, that is 30. Next 75 minus 57 is equal to 18. Next 80 minus 75 is equal to 5. So we can clearly see the frequency of class interval 30 to 40 is maximum in this distribution. So model class will be 30 to 40, option number A. Next question number 19, assertion region.
assertion है a piece of cloth is required to completely cover a solid object. The solid object is composed of a hemisphere, that is hemisphere, and a cone surmounted on it. If the common radius is 7 centimeter and height of the cone is 1 meter, 463.39 centimeter is the area of cloth required. So we know that cross sectional area of cone is pi rl and cross sectional area of hemisphere is 2 pi r square. By solving we get total surface area 463.39, which is correct. But surface area of hemisphere, this is for only cross sectional area of hemisphere, neither it is total surface area of hemisphere nor it can cover the entire object. So A is true, B is false. Last question of objective type. Sum of first n terms in the NAP is given by the formula Sn is equal to 2n into 2a plus n minus 1 into d. So this formula is incorrect because we know that sum of first n terms is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Either it is a printing mistake or this formula is written wrong. Next, sum of first 15 terms of AP is 345. So we have solved this question. We also found sum of first 15 terms of this AP is 345. So A is false and assertion is false and reason is right. So by this we have completed the objective part of this question. Hope you like the series. I will also try to solve the whole question paper. Hope you like the series. Next time, goodbye.